welcome to BKS English classes. Today's topic is finite and non-finite verb. You know, finite and non-finite verb is very important in English grammar. This is not only this is important in all phases of your life, starting from your high school up to your competitive examination. Finite and non-finite verb becomes very important. It becomes very important in spotting error, and it is very important for the high school students aspiring for appearing the exam this year. This is also important for them. Finite verb, non-finite verb, high school ठारू आरंभ करी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पाइका एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। आस आम आज आलोचना करबा। दिस इज द फंडामेंटल क्लास, दिस इज द पार्ट 1 क्लास। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज ए फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कले हम कोन बुझी पिले ओडिया रे हम जानि छे फाइनाइट वर्ब कले समापिका क्रिया, नॉन फाइनाइट वर्ब कले असमापिका क्रिया। हम ओडिया भीतर को बेसी जीवानी हम इंग्रजी ग्रामर को पसबा। फाइनाइट वर्ब कले फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट कैरेज टेंस। फाइनाइट वर्ब से एक वजह जो ही वर्ब समय बा टाइम टेंस से कैरी करे। नॉन फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब व्हिच डजंट carry any tense or time, that is called non-finite verb. And non-finite verbs I have already mentioned in the whiteboard can come. Verbs of non-finite verbs can come to V1, can come as VING, can come as V1, can come as V2, can come as V3. So let's start. I have mentioned 15 examples for you. Let's start analyzing the questions. First question, I prefer travel by train, but this time I prefer dash travel by bus. मते ट्रेन रे जिबाकू भलो लागे। एठी कोन हमें करबा एठी केही चिंता करो प्रिफर टू ट्रैवल करबो कि करबो एठी टू ट्रैवल करबी कि मो एठी ट्रैवलिंग करबी कि टू ट्रैवल कोड करबी। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड। टू ट्रैवल केतले करबो, ट्रैवलिंग केतले करबो, केतले 2v1 करबो, केतले 2v1 करबो, केतले ving करबो। यू मस्ट बी क्लियर व्हाट दैट जते बेले तुमको कोनोसी कार्य ऑकेजनली करिया को भलो लागे, कोनोसी काम तुमको ऑकेजनली करिया को भलो लागे, बेले बेले करिया को भलो लागे, सेटा हो 2v1। जते बेले कोनोसी काम तुमको सदा बेले करिया को भलो लागे, जनरली यू लाइक टू डू दैट वर्क। साधारणतः तुमको से कमटा सदा बेले करिया को भलो लागे, दैट्स ving। फॉर एग्जांपल, my mother likes dash take veg dish। मो माँ को भेज डिश खाइबा को भलो लागे। इट मीन्स माँ को जो भलो लागे एटा तो साधारण व्यवहार, जनरल। सो हियर it will take ving। Answer will be taking। In our example, I prefer travel by train। मते ट्रेन रे जिबा को भलो लागे, but this time एथरो I prefer travel by bus। मते एथरटा बस रे जे भलो लागुची, ताले ताको ट्रेन रे जिबा को सदा बेले भलो लागे। दिस इज द generalized item, generalized thing within the subject। So it will take traveling, it will take traveling। अभी आइए सदा बेले ताको भलो लागुची, किंतु से कहूची मते एबे भलो लागुची बस रे जिबा एक थर को भल लागुची। दिस इज ऑकेजनल, एटा बेले बेले तो भल लागला। सो दिस विल टेक टू ट्रैवल। अब राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। चालीबाटा गोटे भल व्यायाम। स्टूडेंट्स, आई हैव मेंशन्ड यू द सब्जेक्ट ऑफ एनी इंग्लिश सेंटेंस कैन आइदर बी ए नाउन और ए प्रोनाउन। कौन सी इंग्रजी वाक्यर कर्तापद निश्चित नाउन कि प्रोनाउन होता। बट थर्ड आइटम कैन बी सब्जेक्ट, दैट इज वर्ब। वर्ब मध्य बेले बेले वाक्यर कर्ता हो पाए। वर्ब जो कर्ता हुए से दुईटा रूप में कर्ता हुए। प्रथम रूप हुए 2 + v1 हो नचे से ving। and this is called gerund। this is called gerund in English। what is a gerund? Gerund means when a verb is
used as the subject in a sentence, this is called gerund verb of the verb. It can be used either to V1 or VING. So here ଚାଲିବାଟା ଗୋଟେ ଭଲ exercise. We can take here, we can use here walking. This is gerund verb. ଚାଲିବା VING, or we can take it to walk. We can also take it to walk. Walking is a good exercise, or to walk is a good exercise. Similarly, we can say, for example, speak. Speak is easy. Katha kahiba sahaj. Speak is easy. Here the right answer we can choose either to V1, either we can write to speak. To speak is easy, or we can write speaking. Either to V1 or VING. Question number 3. The queen went out dash riding a horse. Rani घोड़ाटे चढ़ी बाहर को पड़ेले. This is actually not non-finite section. This is actually called a participle form. This is a present participle. You know, verbs can have two participles, past participle and present participle. रानी घोड़ाटे चढ़ी बाहर को पड़े गले. हम कौन करिबा घोड़ाटे चढ़ी से पड़े गले बाहर को. It means riding. घोड़ाटे चढ़ी. Right answer is riding a horse. Similarly, we can say here another example I am giving. Dash finish dash take my meal. Dash take my meal. My meal. I went to college. मो पर खाई सारी मो खाना खाई सारी मो कॉलेज को गली. ए जगह कौन करि परिबा एटा को मैं इंग्लिश में. Here finishing my work he went to college. Here the right answer is finishing. Finishing is work. This is called present participle. This is also non-finite verb. Then comes your question number 4. John advised us see a doctor. John बिली जन हमर कर्ता जे अछि John बिली जने लोक कि अछि बालक अछि सब्जेक्ट हमर से हमको उपदेश देले कि तुम जे डॉक्टर में जाके देखा करो. John advised us dash see doctor. And immediately the next question question number 5. John advised dash see a doctor. Here you mark the difference. Here there is an object, indirect object, and here there is no object. Whenever you find an object here, simply you can take 2 plus V1. 2 plus V1. If you don't find any object, कौन कर्म पद्धति क्रिया पर पाऊना, blindly you can take it VING. That is no problem. So here is the object is here, so it is right answer to see. Otherwise there is no object here. This is right answer is seeing VING. Question number 6. I don't mean disturb anybody. This is a little bit confusing, my dear students, but don't mind. Get it clear. This is only part 1. Part 2, part 3, I will take a non-finite verb. This is a very extensive, very big and widespread subject. Okay. Question number 6 and 7 we should discuss simultaneously. I don't mean disturb anybody. If you want 90%, it will mean. If you see, here is mean and here is mean. Two questions we should discuss at the same time. I don't mean disturb anybody. More kahari ko disturb करे उद्देश्य नहीं. So here mean means intention. More उद्देश्य नहीं. क्योंकि ये जगह जो mean टाची यार अर्थ होची. It means यार अर्थ. It means यार अर्थ. वो intention नो जो intention भाବରେ यूज करा जाउची सेतले we can take it 2 plus V1. We can take it 2 plus V1. I don't mean to disturb anybody. एटा मोर उद्देश्य नुहे कि कहा को मो डिस्टर्ब करबी. ओके. then question number 7. If you want 9%, तमे जदि 90% स्कोर करिया चाहौ in your final exam, then it will mean यार अर्थ हबो working very hard. Here right answer is working. Right? बुझियौछि. Next question 8 number. I tried hard lift the box. It is 9 number. Please try. Here is a tried, here is a try. ये दीटा हम कौन करेगा? I tried hard dash lift the box. Please try
open the lid if not break it. Difference कौन? ए जगह जो कहा जाउची जे मु बॉक्स टाकू उठेबा पाइका लिफ्ट करिया पाइका आई ट्राइड माय बेस्ट मु मोर जतपर नास्ती चेष्टा कर किंतु ए जगह जो ट्राई अछि मु खोलिली लीड डबर कौन से ऊपरटा जो मुहटा जो खोलिला दीकर फरक कौन ये से टेकिया को उठेबा को चेष्टा कला किंतु ए जगह से चेष्टा कला जे मो से लीड टा को खोली करी परीक्षा व्यवस्था कहूची जे प्लीज ट्राई आगे चेष्टा करंतु ओ ए जो लीड टा को खोलिबा को डबर मुहटा खोलिबा को जदी न होची त भागी दियो इट मींस एटा एक्सपेरिमेंट करो चेष्टा करो भांगिबा को जदी न भांगुची ताको भांगी दियो डबाटा एक्सपेरिमेंट करो जेते बेले तुम चेष्टा करछो किछि काम करे को राइट आंसर 2 + v1 2 लिफ्ट राइट आंसर 2 लिफ्ट किंतु एक्सपेरिमेंट करूछ चेष्टा करूची डबाटा खोलिया पैका भांगीबी खोलिया चेष्टा करबी चेष्टा परीक्षा भाव में चेष्टा करूची जदी न होला ताले एटा को भांगी देबी इट विल टेक v i n g लिफ्टिंग ब्रेकिंग आई एम सॉरी लिफ्ट इट ओपन द लिफ्ट ओपन ओपनिंग अर्थात यू आर मेकिंग एक्सपेरिमेंट यू आर examining if it is done all right if it is not done I will take next step this is an experiment. Next question number 10. I saw Jessica went at the bus stop. This is subject plus verb plus object, object plus v. Subject plus verb, object plus v1, subject plus v plus object plus v ing. That's the part. I subject, verb, Jessica object. जेसिका ऑब्जेक्ट वेट आम कौन कारण से दुईटा अच्छे ऑप्शन गोटे v1 अच्छी गोटे v i n g अच्छी आम v1 कोडी करबा v i n g कोडी करबा ना जेते बेले से कर्ताटी जो काम करूची इफ दैट इज कंटिन्यूइंग दैट इज गोइंग ऑन नॉट कंप्लीट सेटा सॉरी से कामटा चालुची तुम देखिया भितरे इट विल टेक ing फॉर्म इट विल टेक ing फॉर्म जदी तुम देखिया भितरे त कामटा सरी जाईची कंप्लीट हे जाईची इट विल टेक v1 it will take v1 and काम जे कंटिन्यू करूची दिस विल टेक v i n g कंटिन्यू करूची v i n g काम सरी जाईची v1 हम चेक करबा आई सॉ जेसिका वेट एट द बस स्टॉप मु जेसिका को बस स्टॉप रे अपेक्षा करूथिबार देखिली त जेसिका जो अपेक्षा करूथिला वर्ब ता अपेक्षा करबा ता कामटा सरी जाईथला ना चालू रहितला तुम देखला भितरे निश्चित चालू रहउतला तो अपेक्षा कामटा सरी नथला इट इज इनकम्प्लीट एक्शन सो इट विल टेक वर्ब ing. I saw Jessica waiting. I saw Jessica waiting. V-I-N-G. Next question. I saw him get out of his car. मु ताको देखिली ता कार भीतर बाहरिबा ता बाहरिबा गेट आउट जो बाहरला जो क्रियाटा बाहरला या देखला भीतर से कार भीतर बाहर चंदी भाबुछ कि ता बाहरिबा कमरा इनकम्प्लीट आम नजर थला कार भीतर बाहर आस अर्थात बाहर आसबाटा आम देखला भीतर सर्टनली कंप्लीट सो दिस इज कंप्लीट एक्शन इट विल टेक v1. I saw him get. I saw him get. Right? Next question. He is used to drive car. Students, used to is used in two ways. One is used to plus v1. Another is be used to plus v ing. This is used to. This is a modal. This is a modal. Past habitual action. It means whenever I was at the college or in my high school period, I used to go to college. I used to go to school bicycle. मु जतले मो स्कूल समय रे पाठ पढुतली मु सतबेले स्कूल को साइकिल रे जिबा आसा करथली past habitual over a long period of time he was doing that work it was used to was be what be used to means get habituated to get habituated to get accustomed to get accustomed to bent to take to अभ्यस्त होगा take to ये जितने चीज़ या फॉर्म हो जाए I am get habituated to I have got habituated to
टेकिंग कॉफी मो कॉफी पीवाटा मोर अभ्यास हो जाइए गेट आकस्टम्ड टू से अभ्यस्त हो जड़े कह आई एम नॉट आकस्टम्ड टू वर्किंग इन सच an atmosphere, such an environment. ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କାମ କରିବାରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ. ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି ing. I am not accustomed to working. Bent to. Now the people are bent to cheating others. ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିବାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ କରୁଥିଲେ. Bent to, take to. The young man has taken to taking wine, has taken to using wine. ଯୁବକଟା ମଦ ପିଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି. So here he used to means से अभ्यस्त हो जाइए. ड्राइव कार चलेबार. हियर राइट आंसर जी ड्राइविंग वर्ब ing. जदि खाता ही यूज्ड टू जदि थांता जदि एटा न थांता बी यूज्ड न थांता खाली यूज्ड थांता सेटा ना ड्राइव. डू यू माइंड रिक्वेस्ट अंकल फॉर हेल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. माइंड प्ले गोटे शब्द अच्छी. वुड यू माइंड, वुड यू माइंड एटा गोटे मॉडल रिक्वेस्ट मॉडल. वुड यू माइंड, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी. आगे मत टे साहाଯ୍य करिवे कि हेल्पिंग मी. जो माइंड आखि बुझे सीटी आईएनजी कर दियो. डू यू माइंड रिक्वेस्ट अंकल. डू यू माइंड टू रिक्वेस्ट. डू यू माइंड रिक्वेस्टिंग अंकल. राइट आंसर रिक्वेस्टिंग अंकल फॉर हेल्प. मामू को साहाଯ୍य करिबार तमे किछ खराब मन भाबियो कि किछ खराब भाबियो कि बाकी भाबियो कि. क्वेश्चन नंबर 14. इट इज टाइम वी लीव द प्लेस. वर्तमान यार अर्थ कौन. इट इज टाइम वी लीव द प्लेस तार ओडिया कहला वर्तमान ये जगह छाड़ीबार समय आम पाई होई गलानी. सिर्फ दुई प्रकार अछि. इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम. ये दी प्रकार हो पारो. गोटे प्रकार है फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू V1. आउ गोटे हो पार इट इज टाइम V2. इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2. फॉर एग्जांपल इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट दबा फॉर देम से ऑब्जेक्ट कौन करने को ना टू रीच द प्लेस, टू रीच द प्लेस, टू रीच टू V1 रीच द प्लेस. इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टू V1. तांकर एठी पहुँचबार समय हो गलानी. एटा गोटे स्ट्रक्चर अच्छे. आउ गोटे स्ट्रक्चर अच्छे इट इज टाइम सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल ए बागर लिखबा इट इज टाइम, इट इज टाइम सब्जेक्ट दे. एवरी स्ट्रक्चर अच्छे सीधा. सॉरी V1 में दिस इज V2. इट इज टाइम दे लेफ्ट, इट इज टाइम दे रीच, दिस इज टाइम दे रीच द प्लेस, दे रीच द प्लेस. इट इज टाइम फॉर देम टू रीच, इट इज टाइम सब्जेक्ट दे रीच, दे रीच. So here this is time we means this is not, this is the second structure. This is time we left the place, we left the place, left the place. Dr. Students, if you like my class, please have a like it and don't forget to subscribe. Thanks. Have a fine day.